اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اسلامک اویکننگ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ہمیں تو اس پروگرام کا شدت سے انتظار تھا کہ راجہ صاحب تشریف لائیں گے اور راجہ صاحب سے گفتگو کا ہمیں موقع ملے گا، اور ماشاءاللہ راجہ صاحب نے ہمیں پھر سے وقت دیا، ٹائم دیا، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ اور آج کا موضوع بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، نہایت انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ ایوولوشن کے فرقے، کیونکہ ہمارے ایک سو کال دیسی ملحد ہیں، وہ کہتے ہیں جب کسی معاملے میں ایک سے زیادہ آراء آ جائیں تو وہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے اور اس کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو آپ کی خدمت میں بھی راجہ صاحب تشریف لائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ایوولوشن کے بارے میں کتنی آراء موجود ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں، ایک دوسرے کو بالکل رد کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ آراء موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے، اور وہ ساری کی ساری سائنٹیفک آراء ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے تو چاہیے تو ایسا تھا کہ پھر ایوولوشن کو بھی تسلیم نہ کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ ابھی تک کنفرم نہیں کر سکے کہ جو دنیا میں پہلا آدمی آیا تھا، پہلا فرد آیا تھا، اس کا نام کیا تھا، اس پہ سب کا اتفاق نہیں ہے، لہذا وہ ساری کہانی اور فراڈ ہے، جھوٹ ہے، حقیقت تو ایک ہوتی ہے، اتنی تو نہیں ہو سکتی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کیسے راجہ صاحب ان کا آج ٹھیک طرح سے جائزہ لیں گے ایوولوشن کے فرقوں کے بارے میں کہ ایوولوشنسٹ جو ہیں وہ اب کیا کیا آراء رکھتے ہیں، کون کون سے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کس کس فرقے کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ماشاء اللہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو ایڈ کرتا ہوں اسکرین میں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، بالکل آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ راجہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں سر، آپ پھر تشریف لے آئے، پھر آپ نے ہمیں وقت دیا ہماری گزارش پہ۔ سر یہ دو بھائی جو ہے نا دیسی ساختہ ملحد جو ہیں، ان دو بھائیوں کا ایک کلپ، سر دونوں میں سے ایک کا کلپ میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ چاہتا ہوں کہ آپ وہ سن لیں، اس وقت وہ کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد ہم باقاعدہ پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ اور سامعین میں بتاتا چلوں آپ کو کہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ موسٹلی زیادہ دوستوں کو آج لیا جائے، کیونکہ اکثر دوست بعد میں گلا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری راجہ صاحب سے بات نہیں کروائی گئی۔ اب جو دوست آئیں گے میں ان کو مختصر ٹائم کے لیے راجہ صاحب سے بات کرنے دوں گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ راجہ صاحب سے استفادہ کر سکیں، ان سے گفتگو کر سکیں، اور میں بھی کم کوشچن کروں گا تاکہ راجہ صاحب جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کر سکیں۔ ذوالفقار بھائی، میں نے آپ کی طرف ایک کلپ بھیجا تھا، کائنڈلی وہ چلا دیجیے گا، حارث کے بھائی غالب کمال کا۔ جی ضرور ضرور۔ بلکہ آ گیا سر، جو کہتا ہے کریشن کی تھیوری مسلمان نہیں مانتا، زرتشت جو کہتا ہے وہ مسلمان کرسچن نہیں مانتا۔ مگر ان کی تھیوریز کا کیا ہے؟ ان کی تھیوریز کا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہندو جو کہتا ہے کریشن کی تھیوری وہ مسلمان نہیں مانتا، زرتشت جو کہتا ہے وہ مسلمان کرسچن نہیں مانتا، پہلا انسان کون تھا وہ اس میں ہی اگریمنٹ نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تھیوریز کو کسی بھی طرح، ان کے آئیڈیالوجیز کو کسی بھی طریقے سے آپ ایوولوشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ سب بکواس ہے، کچھ بھی اس میں ریالٹی نہیں ہے۔ اگر اس میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو کم از کم دیکھیں، سچ ایک ہوتا ہے، سچ 10 نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ میرا نام اگر غالب ہے تو جتنے لوگوں کو میرا صحیح نام پتا ہے وہ مجھے غالب ہی کہیں گے، وہ مجھے کوئی بشیر نہیں کوئی کہنے لگ جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف نام بشیر بھی ہے میرا، دوسری طرف شبیر بھی ہے، تیسری طرف غالب بھی ہے، تو چوتھی طرف کوئی اور نام بھی ہے، سارے علیحدہ علیحدہ نام بتا رہے ہیں اور سارے ہی سچے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے سچائی جو ہوتی ہے نا، جب وہ نظر آتی ہے تو جب لوگ اسے ایکسپلین کرتے ہیں تو سب کی ایکسپلینیشن ایک جیسی ہوتی ہے، مگر جھوٹ کو جب لوگ ایکسپلین کرتے ہیں تو سب کی ایکسپلینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اب جیسے ایک بات ہے، آپ میوٹ ہیں علی بھائی، علی بھائی آپ میوٹ ہیں۔ راجہ صاحب جیسا کہ آپ نے سنا کہ محترم فرما رہے ہیں کہ سچائی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، ایک سے زیادہ آراء اگر اس میں آ جائیں تو پھر وہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے، ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سچائی تو ایک ہی ہوتی ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ یہ جو ایوولوشن ہے یہ ایک سچائی ہے، یعنی کہ اس کے لحاظ سے تو پھر ایوولوشن پہ کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور سب کو چاہیے تھا کہ اس کو تسلیم کر لیتا۔ تو سر آپ اس کی اسٹیٹمنٹ میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر مجھے عزت بخشی، اور آپ کے جو سننے والے ہیں ان کی خدمت میں بھی سلام۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی میرا ڈیزائر نہیں ہے، کوئی میری خواہش نہیں ہے کہ میں خود کو ریلیگیٹ کروں
इस तबके तक उनके मतलब फेस टू फेस आना या कुछ इस तरह की बात करना, बिकॉज आप जब आप कुछ किसी चीज़ पे टाइम देते हैं तो आपको अल्लाह ताला हम्बलनेस देता है, थोड़ा सी गहराई देता है शख्सियत में, तो फिर वो आप चूज़ करते हैं कि आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं, किसके बारे में नहीं। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हमें कुछ पढ़े लिखे आला ज़र्फ़ साफ़ सुथरी गुफ्तगू वाले लोग मिले ही नहीं हैं, या कम से कम ऐसे लोग जो अब कम से कम हमें तो चले गलत वो हमें ठीक नहीं समझते, जिस फेरी टेल को वो ठीक समझते हैं उसे ही ठीक तरह से पढ़ लेते, तो हमारा भी टाइम अच्छा गुजरता। लेकिन अब हमारे नसीब में यही आए हैं, तो अब मजबूरी है, हम इसी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इस तमहीद के बाद जो बात आपने कही, इसमें मैंने एक वीडियो भी मैंने एक अपलोड किया है, जिसमें मैंने काफ़ी जो फैक्शंस हैं, फ़िरके हैं एवोल्यूशन के, कि अगर यही म्यार है, और ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये हमारा म्यार नहीं है। हम इस चीज़ को अकली बुनियादों पे देखते हैं कि कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं। जिस आदमी ने थोड़ी सी न्यूरो साइंस पढ़ी हुई है, जिस आदमी ने थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ी है, उसके लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि एक ही चीज़ की कई इंटरप्रिटेशंस होती हैं। हर चीज़ की, लिटरली आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो 2 लोगों से पूछें तो 2 लोग मुख्तलिफ आरा देंगे आपको, भले दोनों एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज़ दिस इज़ हाउ वी इंटरप्रेट डेटा। लेकिन वो जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं वो समझता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो सच होता है उसको सब एक ही तरह से बयान करते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारा ये म्यार है तो फिर तुम्हारे म्यार को हम तुम्हारी ही थ्योरी पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जब अप्लाई करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म से इत्तेफाक नहीं करती, नेचुरल सिलेक्शन न्यूट्रल म्यूटेशन से, जो न्यूट्रल थ्योरी है उससे इत्तेफाक नहीं करती, जो एक्सटेंडेड सिंथेसिस है वो सबको मिला के चलने की कोशिश करता है, और सबको इसलिए मिला के चलने की कोशिश करता है कि ये तो 2 मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा जो थर्ड वे इवोल्यूशन वाले हैं वो डार्विनिज्म को आउट ऑफ डेट समझते हैं, और थर्ड वे के अंदर जो सिम्बियोजेनेसिस है वो सिम्बियोजेनेसिस और सिम्बियोसिस में कम फर्क होता है इन अ वे के एक में 2 लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दूसरे में ज़रूरी नहीं कि वो एक ही तरह के हों। लेकिन सिम्बियोसिस जो है वो भी एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म का हिस्सा है, लेकिन वो एक्चुअली रिफ्यूट करती है डार्विनिज्म को। तो इसमें इतने पैराडाइम हैं, मैं माफी चाहूँगा मेरे जहन से नाम निकल गया है, अमेरिकन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, लेक्चरर भी रह चुके हैं, आई थिंक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, जो कहते हैं कि इवोल्यूशन की थ्योरी किसी और थ्योरी की तरह नहीं है। जैसे बाकी है ना थ्योरी में कि आपको बेसिक क्रक्स जो सबका एक है उसके अंदर कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऐसी नहीं है। वो ऐसी है कि सबका अपना ही ये जहां है, अपने अपने पैराडाइम्स हैं। ये लफ्ज़ पैराडाइम उनका है कि सबके अपने अपने पैराडाइम्स हैं, किसी का कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपने इस तरह से इवोल्यूशन को ठीक साबित करना है तो ये आप क़यामत आ जाएगी, आप इसको ठीक नहीं साबित कर सकेंगे। सबका अपना अपना फ़िरका है, सबका अपना अपना जहां है। अच्छा राजा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं, हमें बताएं कि ये जो न्यू डार्विनिज्म है, क्योंकि हम फ़र्क देखना चाहते हैं, क्योंकि ये फरमा रहे हैं कि जहाँ पर फ़र्क आ जाए, और जितना मैंने सुना है या देखा है एवोल्यूशन के फ़िरकों के बारे में, मैंने देखा ये एक दूसरे को बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर देते हैं। जैसे न्यूट्रल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है या न्यू डार्विनिज्म है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करती 100%। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मुख्तलिफ है। सर, मैं सामीन की आसानी के लिए चाहूँगा कि अगर आप डिफाइन करके उनके अंदर जो फ़र्क आ रहा है, अगर इस तरीके से हमें समझाएं तो ये सर ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, जो क्लासिकल डार्विनिज्म है या जो ओरिजिनल डार्विनिज्म, वो ज़्यादा स्पीशीज़ की एडेप्टेशन के हवाले से था कि जो अपने माहौल में बेहतर तरह से अडेप्ट करती हैं, नेचर उनको फिर सेलेक्ट करती है, एंड दैट्स मोर टू विद द वेरिएशंस। लेकिन उस ज़माने में जो जिसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं, कि ग्रेग मेंडल ने जो एक पैरेलल तजर्बा किया था, उन्होंने सब्जियों पे, मटरों पे किया था कि जो जेनेटिक्स हैं उससे उनको वो बड़ी तफसीली बात है, मैं आप ज़्यादा उसमें वक्त नहीं देना चाहूँगा। किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने बेसिकली जेनेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ कि उस ज़माने में जेनेटिक्स को कोई जानता नहीं था। अगरचे मेंडल और डार्विन हम असर थे, लेकिन दोनों की एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं थी। तो जब इनकी आपस में वो मुलाकात भी नहीं हुई और डार्विन जो है वो फोर्थ हो गया, तो उसके बाद जब ये सारी साइंसेज इकट्ठी की गई तो फिर नेओ डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जिसको 1940s में फिर मॉडर्न सिंथेसिस का नाम दिया गया। जो मॉडर्न सिंथेसिस या जो नेओ डार्विनिज्म है, इसका ताल्लुक है
बुनियादी तौर पे रैंडम वेरिएशन से और नेचुरल सिलेक्शन से, कि जो हमारा जेनेटिक कोड है उसमें रैंडम कुछ वेरिएशंस आती हैं, मॉडिफिकेशंस आती हैं, म्यूटेशंस आती हैं, और फिर नेचर ये डिसाइड करती है कि कौन सी इनमें से ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी सर्वाइव करती है, तो फिर वो उसको फिर वो जो पॉपुलेशन है उसमें उसको वो फिक्स कर देती है। तो डार्विनिज्म और नेओ डार्विनिज्म में ये फ़र्क है। इस वक्त जो टेक्स्ट बुक बायोलॉजी है, यानी कि टेक्स्ट बुक बायोलॉजी से मुराद के जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है एज अ स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो डार्विनिज्म नहीं है, वो नेओ डार्विनिज्म या जो मॉडर्न सिंथेसिस है वो पढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है जी उसका क्या डिफरेंस है न्यू डार्विनिज्म? नियो डार्विनिज्म में तो मेन जो है उसमें नेचुरल सिलेक्शन है कि नेचर सिलेक्ट करती है, लेकिन जो न्यूट्रल थ्योरी है वो इसको रिफ्यूट करती है या बड़ी हद तक उसे डिपार्ट करती है, मुझे कहना चाहिए, इस बेस पे कि वो उनकी और वो दुनिया में साइंसदान जो हैं वो बड़ी कसीर तादाद में हैं और उनके पास बड़ा हार्ड एविडेंस है इस चीज़ का कि जो म्यूटेशंस होती हैं उनमें से अक्सरियत ऐसी होती हैं कि जो बेनिफिशियल भी नहीं होती और हार्मफुल भी नहीं होती, देयरफॉर उसका इसीलिए इसका नाम न्यूट्रल है कि वो इस तरफ भी नहीं है उस तरफ भी नहीं है, वो न्यूट्रल होती हैं। और फिर एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब ये है कि वो फिर पॉपुलेशन, आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो फिर वो जेनेटिक ड्रिफ्ट से वो जो एक म्यूटेशन होती है वो गायब हो जाती है, लूज हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर दोबारा से वो म्यूटेशंस होती रहती हैं तो फिर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट से जो सर्वाइव करती है वही पॉपुलेशन में फिक्स होती है। नेचर कोई सिलेक्ट नहीं करती है, नेचर का कम से कम कोई सिलेक्टिव रोल इसमें नहीं होता। ये दोनों में बुनियादी फर्क है कि डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन, न्यूट्रल थ्योरी में कहते हैं कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। अच्छा सर, ये फर्क ही कोई नहीं, ये बहुत बड़ा फर्क है। देखिए डार्विनिज्म की एक टांग, दो टांगे है ना उसकी, एक रैंडम म्यूटेशन है और एक नेचुरल सिलेक्शन है। आप इसका जो सबसे बड़ा प्रोपोनेंट इस दौर का है रिचर्ड डॉकिंस, उसकी अगर आप किताब सेल्फिश जीन पढ़ें तो वो टोटल है इन दो चीज़ों पे, अगरचे उसमें बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मेन जो उसका आइडिया है वो यही है। तो एक टांग इसकी टूट जाती है तो फिर और फर्क किसे कहते हैं? जी जी, इतना डिफरेंस मतलब एक तरफ देखिए वो कह रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन वाली बात जो है वो पूरी फिट हो रही है न्यू डार्विनिज्म के मुताबिक कि नेचुरल सिलेक्शन के जरिए से नेचर सेलेक्ट करती है, जबकि दूसरी जो न्यूट्रल थ्योरी है उसके मुताबिक वो नेचर को तो बिल्कुल साइड पर लगा रही है। तो सर आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि इन दोनों भाइयों ने पढ़ा ही नहीं है इससे ज़्यादा, इन चीज़ों को पढ़ा होता तो फिर वो No, I don't think so. मैंने इवन डिबेट के दौरान भी कुछ सवाल किए थे गालिब कमाल से। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हर आदमी को हर चीज़ पता होती है, किसी भी फील्ड में हर आदमी को हर चीज़ नहीं पता होती, तो मैं इस तरह से तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं उस आदमी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देयर इज़ नथिंग प्रोफाउंड। क्योंकि चले डिबेट को आप छोड़ें, डिबेट में तो चले फिर भी लाइव माहौल होता है, बहुत से आर्गूमेंट्स आ रहे होते हैं, कोई चीज़ आपके जहन में आती है, कोई नहीं आती, ओके फाइन, उसमें से हम कुछ ज़्यादा नहीं बात कर सकते। लेकिन एक आदमी जो एक वीडियो बना रहा है और एक सवाल का जवाब दे रहा है और वो इतने बगैर किसी रोक रुकावट के बिल्कुल से कहते हैं ना बेधड़क तरीके से कहता है कि नहीं, फिर अगर सारे जो है मज़ाहिब और उनमें डार्विनिज्म को या इवोल्यूशन को रखो अगर, तो फिर इवोल्यूशन ही ठीक साबित होता है ना, बाकी सारे तो फिर गलत साबित हो जाते हैं। तो यहाँ से इंडिकेशन मिलता है कि एक्चुअली उसको भी नहीं पता कि इसके अंदर इतने फिरके पाए जाते हैं। सर मैं तो आपको दोबारा सुनाऊंगा, ये सुन लें ये क्या फरमाया। मैं तो सर बाज नहीं आने वाला, मैं दोबारा सुना के तो फिर आपसे एक बार राय दूंगा। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि एक चीज के बारे में जब दो आरा आ जाए तो झूठी हो जाती है, उनसे आगे चले और इस तरह इवॉल्व हुए। मगर इनकी थ्योरीज का क्या है? इनकी थ्योरीज का कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिंदू जो कहता है क्रिएशन की थ्योरी वो मुसलमान नहीं मानता, ज़रतुश्त जो कहता है वो मुसलमान क्रिश्चियन नहीं मानता, पहला इंसान कौन था वो उसमें ही एग्रीमेंट नहीं है। तो मसला ये है कि इनकी थ्योरीज को किसी भी तरह, इनके आइडियोलॉजीज को किसी भी तरीके से आप एवोल्यूशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सर अब ये देख लें क्या कहता है कि आप एवोल्यूशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। अब इसने ये पढ़ा होता, मैं तो सर आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता। आप कहते हैं कि कुछ पढ़ा होगा, इसलिए ये आप कहें कि कुछ ही पढ़ा होगा, लेकिन आके फिर बता देना कि मैंने कुछ ही पढ़ा है। मेरा ख्याल है I think this is more likely कि शायद ज़्यादा नहीं पढ़ा। और ये स्क्रिप्ट की अगला जो हिस्सा है उसमें जो एक्सटेंशन है
اس میں یہ شخص یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اگر ایوولوشن کو پھر باقی سب جو مذاہب ہیں ان میں اپنی اپنی تشریحات نکل رہی ہیں, اگین یہ ورڈ فار ورڈ وربیٹم میں بات نہیں کر رہا, تشریح اس کی وہ ہے کہ اگر سب میں مختلف وہ آراء نکل رہی ہیں اور تشریحات نکل رہی ہیں اور ایوولوشن میں نہیں نکل رہی تو پھر ایوولوشن ہی سچی ہوئی نا. بس اس لاجک سے اگر ایوولوشن میں بھی اتنے زیادہ فرقے نکل آئیں, اب مسلمان میں آپ کیا نکالیں گے؟ سنی, شیعہ اور اہل حدیث, دیوبند, بس. کرسچنز میں آپ کیا نکالیں گے؟ کیتھولکس, پروٹیسٹنٹس, اور بھی ہیں, میں نہیں کہتا ایسے نہیں ہیں, یوہاوز وٹنس ہیں, نمبر آف ادر. لیکن اگین اگر آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو فیری ٹیل ہے وہ ان سے بہتر ہے, اس لیے اس بیس پہ کہ اس میں سب ایک ہی طریقے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ بڑی غلط فہمی کی بات ہے. پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایوولوشن میں کیا چل. دیکھیں اگر سارا کچھ ایک ہی, بڑی سمپل سی چیز ہے, اگر سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا تو ایکسٹینڈڈ ایوولوشنری سنتھسس کی تھیوری کی ضرورت ہی کیا پڑی ہوئی تھی, جو کہتی ہے کہ ان سب کو, یا ایٹ لیسٹ میں سے جو زیادہ پرومیننٹ ہیں, سب آئیڈیاز کو اکٹھا کر کے آگے چلنی ہے. There was no need for it. اچھا سر, یہ فائلیٹک گریجویشن کیا ہے؟ فائلیٹک گریجولزم جو نیو ڈارونزم, اس کا ایک کانسیپٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سلولی بڑے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے اس میں چینجز آتے ہیں, جس کو ہم اڈیپٹیشنز کہتے ہیں یا مائکرو ایوولوشن کہتے ہیں, کہ اسمال اسکیل چینجز جو ہیں وہ, یہ کہ آنکھ کا رنگ چینج ہو گیا کسی پرندے کی, اس کی جو ہے وہ پروں کی جو ڈینسٹی ہے وہ چینج ہو گئی, دم لمبی ہو گئی, اس طرح کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک اور ہی اسپیشیز بن چکا ہوتا ہے. یہ ہے فائلیٹک گریجولزم. فائلیٹک جو ہے یہ فائلا یا فائلم سے ہے. جو اینیملز ہوتے ہیں وہ مختلف گروپس میں ہوتے ہیں, ان کی مختلف فیملیز ہیں, جیسے ایک اسپیشیز لیول ہوتا ہے تو اس طرح سے ایک فائلا یا فائلم لیول ہوتا ہے. تو فائلیٹک گریجولزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک مورفولوجیکل شفٹ, یعنی کہ ایک نو سے دوسرے نو میں آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے وہ بنتا ہے. لیکن وہ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے وہ ایوولو ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسا میجر پوائنٹ آتا ہے کہ وہ ایوولو ہو کے کچھ اور بن جاتا ہے, بلکہ وہ تھوڑا کر کے, یہ نہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے ایک پیج پہ, کوئی ایک پورے پیج پہ تحریر لکھی ہوئی ہے تو آپ ایک اور پیج ساتھ رکھیں اور اسی تحریر کو آپ لکھیں, لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی لفظ چینج کرنا شروع کر دیں, کوئی اور زبان اس میں شامل کر دیں, یا کوئی آپ لفظ جو ہے وہ چینج کرتے رہیں. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تھوڑے چینجز کے بعد جو ہے وہ پیج, اس پہ تحریر ٹوٹل اور لکھی ہوئی ہوگی. اگرچہ یہ ایگریٹ ایگزامپل نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیج پہ تحریر ہی رہے گی, تو اس میں کیا ہے کہ پیج جو ہے وہ کوئی کرسی تو نہیں بن جائے گا, وچ از فیئر, لیکن یہ اس کا آئیڈیا ہے. ان کا سر ڈیفرنس کیا ہے ڈارونزم سے, نیو ڈارونزم سے یا اور ڈارونزم سے؟ نیو ڈارونزم کا حصہ ہے نا کہ وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب وہ جو ماڈرن سنتھسس میں جو ہے کہ جو رینڈم میوٹیشن ہوتی ہے اس کو پھر نیچر سلیکٹ کرتی ہے, تو وہ جب تھوڑا اس کو سلیکٹ کرتی رہتی ہے تو پھر ایک گریجول اس میں چینج آتا رہتا ہے, گریجولی وہ چیز آہستہ پھر کسی اور اسپیشیز میں چلی جاتی ہے. جی صاحب, اس کے علاوہ اور کون سے ان کے میجر فرقے جو ہیں جو ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, کائنڈلی اگر وہ بھی آپ بتا دیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو فائلیٹک گریجولزم کی آپ نے جو بات کی کہ یہ نیو ڈارونزم کا حصہ ہے, نیو ڈارونزم کا ہی ایک اور حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے پنکچویٹڈ ایکویلیبریم. پنکچویٹڈ ایکویلیبریم جو ہے وہ ٹوٹل نلیفائی کرتا ہے فائلیٹک گریجولزم کو. جو دو مین پرپوننٹ تھے جنہوں نے یہ ڈیوائز کیا تھا آئیڈیا, نائل ایلرج اور اسٹیون جے گولڈ, وہ پیلنٹولوجسٹ ہیں. وہ فوسل ریکارڈز کون سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ اس تھیوری پہ کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ فائلیٹک گریجولزم جو ہے, یا جس کو عام طور پہ گریجولزم کہا جاتا ہے, وہ گریجولزم کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے اور ٹھیک سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے گریجولزم کا دعویٰ کرنا ہے تو ہم جو ایویڈنس دے سکتے ہیں وہ فوسلز کی صورت میں دے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس اتنے 100 ملین پرانا ڈی این اے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ملے, وہ تو جیسے ہم جو ڈی این اے ہم جو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اب وہ ہڈیوں سے کر سکتے ہیں, اور وہ تو جیسے ہڈیاں ہوتی ہیں ڈکے کے شکار ہوتی ہیں, وہ بھی اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر جو جینیٹک ایویڈنس ہے اس پہ بھی پڑتا ہے, یہ جو جینیٹک ڈیٹا ہوتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ اگر ہم گریجولزم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں پھر فوسلز دکھانے پڑیں گے, جبکہ یہ خود ان کے اگر آپ پڑھیں اسٹیون جے گولڈ کو تو وہ تو ایسی باتیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ ہم سائنسدانوں کا, پیلینٹولوجسٹ کا یہ ایک ٹریڈ سیکرٹ ہے.
आसान अल्फाज में अगर मैं आपको इसकी बात अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है कि ये सारा झूठ है कि हमने बस ये चक्कर दिया हुआ है कि बड़ा कुछ हमारे पास है, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। बेसिकली देयर इज नथिंग ऑफ सब्सटेंस। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में वो कहते थे, ये मैंने गालिब कमाल से डिबेट में भी कही थी, कोर्ट मैंने शो किया था कि जिसमें स्टीवन जे गूल्ड कहते हैं कि हमारे पास कुछ ये टूटे हुए जबड़े और बोसीदा सी खोपड़ियों के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम कोई ऐसा साबित कर सके कि ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो वो फिर आइडिया लेके आए पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का, जिसपे दो एटम्स हैं। सर मैं तो एक बार फिर सर फिर प्ले करूंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरी बात नहीं अच्छी लग रही आपको? सर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ सर। जी जरूर। बकवास है, कुछ भी उसमें रियलिटी नहीं है। अगर उसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई होती तो कम से कम देखें, सच एक होता है, इसको किसी भी तरह इनके आइडियोलॉजीज को किसी भी तरीके से आप एवोल्यूशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ झूठ है, वो सब बकवास है, कुछ भी उसमें रियलिटी नहीं है। अगर उसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई होती तो कम से कम देखें, सच एक होता है, सच 10 नहीं हो सकते, ठीक है। मेरा नाम अगर गालिब है तो जितने लोगों को मेरा सही नाम पता है, और वो एक ही होता है सर, वो ज्यादा नहीं होते सर। फिर हमें बता दें कि अगर सच एक ही होता है तो वो कौन सा एक होता है? वो ग्रेजुअलिज्म वाला होता है या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वाला होता है? वो ग्रेजुअलिज्म कहता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर एक नई स्पीशीज में जाती हैं, वेयरएज पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हैं कि नहीं, उसमें दो पार्ट्स हैं, स्टेसिस और सल्टेशंस। स्टेसिस मींस कि कई मिलियन साल चीज़ों में कोई नोटेबल चेंज नहीं आता, और सल्टेशंस फिर एक लगती है। ऑफ कोर्स जस्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ मिनटों में, जियोलॉजिकली स्पीकिंग उसमें भी काफी टाइम लगता है, लेकिन जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम है उसके अगर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो फिर आनन फानन ये एक नई स्पीशी वजूद में आ जाती है। अब दोनों में से कोई एक ही चीज सच्ची हो सकती है, अगरचे कुछ साइंसदानों ने ये इसको आपस में मिलाने की कोशिश की है कि नहीं कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनकी जल्दी इवोल्यूशन होती है, तो वो फिर हो सकती हैं पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के तहत, और जो जिनकी ज्यादा लंबे टाइम भी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी होती है ग्रेजुअलिज्म के तहत। बट दिस इज रबिश। इसको तो जो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वाले हैं वही नहीं मानते, कहते हैं ऐसा नहीं है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि स्टेसिस का तो मतलब ही ये है कि वो कई मिलियन साल चीज़ जो है ये बड़ा लंबा अरसा उस चीज़ में कोई वेरिएशन ना आए, या ऐसी वेरिएशन ना आए जिससे हम एक मॉर्फोलॉजिकल शिफ्ट को हम उसका मुशाहिदा कर सकें फॉसिल रिकॉर्ड में। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो थोड़े अरसे में इवॉल्व हो गई? इट्स नॉट म्यूचुअली कंपैटिबल। सर वैसे पॉसिबल हो सकता है। असल में ना आपने इन भाइयों को सुना तो मैंने भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैंने कहीं 5-5 मिनट 10-12 बार इसको सुना है तो सर मुझे समझ आ गई है। आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं, जो ये कहेंगे वो आप मान ले, वरना वो आपसे इख्तलाफ भी करेंगे, आपको गालिब गलौज भी कहेंगे, आपको जाहल भी कहेंगे, क्योंकि आपने उनकी बात से इख्तलाफ किया। हाँ, ये अब मुझे ज़्यादा पता नहीं था इन भाइयों के बारे में पहले, लेकिन अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है तो आई वाज रियली अमेज्ड। आई मीन, एक पहले मैंने दूसरे भाई की एक जो है वो, इन दोनों भाइयों की, खैर वो जो मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने साइंस का गला घोंटा है कि, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार कोई आदमी साइंस से इतना पैदल हो के भी इस चीज़ की उसकी वजह शोहरत ये हो सकती है कि ये साइंस जानते हैं। तो मुझे इन दोनों की साइंस को देख के मुझे हम लोगों का पता चला है कि हमें साइंस कितनी कम आती है। ये इस लेवल की उसमें, यानी कि वो, मैं क्या उसकी तफसील में जाऊं कि मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट को ये ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो देखो जिंदगी बन गई थी, बस बात खत्म हो गई थी। और साथ ही एक तो कह रहा है कि नहीं जिंदगी नहीं बनी थी, जो होता है वो अमीनो एसिड जिंदा नहीं होता, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई मीन दिस इज द लेवल ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग। तो मजे की बात ये थी कि वो मिलर कर रहा था, ये बता खुद रहे हैं कि वो कोई बाशऊर आदमी कर रहा था ऐसा, तो ऐसा हो रहा था, तो फिर वो जिंदगी तो बनी नहीं, जिंदगी फिर भी नहीं बनी, और जहां तक बना वो भी एक बाशऊर आदमी ने बनाया। वेरी नाइस टेक्निकल पॉइंट। वैसे ये कहते हैं कि वो सिंगल सेल पता नहीं खुद से कहीं से इत्तेफाक से आ गया था, फिर इत्तेफाक बहुत सारे आपको पता है कि इत्तेफाकात फिर बीच में आ जाते हैं। लेकिन खैर मैं रजब आपसे मजीद पूछना चाहूंगा कि इनके अंदर और जो फिरके हैं उनके बारे में भी आप जरा फरमा दीजिए। और इनमें ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, ये ज़्यादा इनका ताल्लुक जो है वो डार्विनिज्म से है, कि जो डार्विन की थ्योरी थी। इसके अलावा लमार्क की थ्योरी दुनिया में अब अगरचे उसके नहीं इतने प्रोपोनेंट्स ना होने के बराबर हैं, अगरचे उसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दोबारा से रीसर्फेस हो रहे हैं, एपिजेनेटिक्स मिसाल के तौर पे, ये लमार्कियन आइडिया था। और जो अब जो टफ टाइम दे रही है डार्विनिज्म को थ्योरी, वो है थर्ड वे ऑफ इवोल्यूशन। थर्ड वे इवोल्यूशन जो है वो बेसिकली डार्विनिज्म को वो समझती है कि वो आउट ऑफ डेट है,
वो पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं। नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि मैं रोकूंगा, मैं सर आपको रोकूंगा सर, मैं एक बार फिर जी सुनना चाहता हूँ सर, मैं गलत साहब को सुनना चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ सर। तो वो क्या डार्विनिज्म को वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं फिर मैं सर आपको अली कहता भाई हूँ वो आज आपका वो दोस्त है मुझे तो आप कोई मानते नहीं हैं। बशीर नहीं कर सकते। आज अब मसला ये है कि एक तरफ नाम बशीर भी reality नहीं है। अगर उसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई होती तो कम से कम देखें, आइडियोलॉजीज को किसी भी तरीके से आप एवोल्यूशन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब कुछ झूठ है, वो सब बकवास है, कुछ भी उसमें रियलिटी नहीं है। अगर उसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई होती तो कम से कम देखें, सच एक होता है, सच 10 नहीं हो सकते, ठीक है। मेरा नाम अगर गालिब है तो जितने लोग सर आप सुन ले, देख ले सर आप कह सकते हैं, हम मेरा दोस्त कह सकते हैं, मैं अब आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन सर मैंने इसको चलाना बार बार है, जब आपको नई बात बताएंगे सर ये, ताकि ना कम से कम इस तक जब पैगाम जाए तो उसको पता चले कि स्केल ये कैसे बैठ के अपने एक बंद कमरे में बैठ के स्केल बना रहे थे, बंदा किसी से डिस्कस ही कर लेता है, इसलिए एक भाई रखा हुआ उसके साथ ये डिस्कशन करके समझता है कि अब बस बात फाइनल हो गई है, अब दुनिया की सारी साइंस और सारे साइंसदान सब फेल हो गए हैं क्योंकि हमने एक स्केल बना दी है। तो सर मैं तो बस बार अब बार सुनाऊंगा सर, मैं मालूम चाहता हूँ अगर आप इरिटेट हो सर। नो नो दैट्स फाइन फाइन, आप आइए देखें, अपना प्लेटफॉर्म होने का यही फायदा होता है। तो अच्छा, जो थर्ड वेव इवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, थर्ड वेव इवोल्यूशन जो है वो बेसिकली इसके डार्विनिज्म को वो एक आउट ऑफ डेट आइडिया समझते हैं। वो समझते हैं कि ये क्या हमने एक शुरू कर दिया है कि जो चीज़ समझ नहीं आती वो नेचुरल सिलेक्शन पे डाल दी। एंड इट्स अ गुड फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। मेरा अपना भी ये सवाल है कि जो इवोल्यूशन है, जो इवोल्यूशनिस्ट्स हैं, ये तो बेसिकली कुछ कोर फिलोसफीज है जिसके ऊपर ये चलते हैं। जो एथियस्ट इवोल्यूशनिस्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें नाइलिज्म है, मटेरियलिज्म है, तो ये तो सारी फिलोसफीज इस तरह की पे ही जाती हैं कि बस कुछ भी मेटाफिजिकल नहीं है, जो कुछ भी है वो बस अपना एक बगैर मकसद के कायनात है, बगैर मकसद की एक ज़िंदगी है। तो उसमें एक बड़ा यानी कि फिलोसॉफिकली बड़ा पोटेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हर चीज़ पे मकसद है तो फिर नेचर किस मकसद के लिए सिलेक्ट करती है? व्हाई डज इट इवन बॉदर? क्यों? और उसमें इतनी इंटेलिजेंस कहाँ से आ जाती है कि वो प्रेडिक्ट कर लेती है कि ये जो म्यूटेशन है ये बेनिफिशियल होगी? नेचर बड़ी इंटेलिजेंट फील हो रही है मुझे। बेमकसद फील नहीं हो रही। अगर ये ठीक है तो इस तरह से फिर वो जो उनके आइडियाज़ हैं, हॉरिजॉन्टल डेटा, हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफ़र, ये मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे थर्ड वे ऑफ इवोल्यूशन है उनकी, कि उनका जो आइडिया है कि हमारे पास चूंकि डार्विनिज्म हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर को एक्सेप्ट नहीं करता, सिम्बियोजेनेसिस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो एपिजेनेटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करता, देयरफॉर ये नहीं कोई इकरार वाकई ये थ्योरी नहीं है। और इसमें बड़े मज़े की चीज़, एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग है रिचर्ड डॉकिंस का और डेनिस नोबल का। डेनिस नोबल जो है ये थर्ड वे वाले हैं, डॉकिंस हम सब जानते हैं कि डार्विनिज्म वाला है। डॉकिंस से ये पूछा गया कि ये टिम डेनिस और डेनिस नोबल, टिम डेनिस मैं कह गया, माफी चाहूंगा, कि डेनिस नोबल कि आप आखिरकार उनको फिर आप मानते क्यों नहीं हैं? आप उनकी बात को मान ले अगर वो सारा ठीक कह रहे हैं, या आप उनको आप रिजेक्ट कर दें। तो डॉकिंस कुछ सोच के कहता है कि नहीं, पहले लोगों को बेसिक बातें सिखानी चाहिए ना। यानी कि वो इस हद, अब ये मतलब मैं कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन करूं कि एक आदमी जो एक चीज को एक हरफे मुकद्दस समझता है, उसको थोड़ा सा चैलेंज किया गया तो वो ये कह रहा है कि नहीं थर्ड वे वाले ठीक है लेकिन वो ज्यादा एडवांस है, हम तो बेसिक चीजें सिखा रहे हैं लोगों को। हालांकि वो थर्ड वे लमार्कियन है और लमार्कियन का स्पिन ऑफ है एक वो, और इतना ज्यादा है कि जेरी कोइन जिसने वाई एवोल्यूशन इज ट्रू किताब लिखी हुई है और वो बड़ा एवोल्यूशन के लिए वो भी बड़ी मुकद्दस किताब रखती है, हैसियत रखती है, उसने थर्ड वे वालों को इसी चीज पे उसने कॉल आउट किया कि तुम तो लमार्क के आइडिया को लेके वापस आ गए हो, तुम कौन होते हो? यानी कि वो खुद जो डार्विनिस्ट है वो इसको नहीं मानते, लेकिन डॉकिंस को थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो वो कहता है नहीं नहीं, पहले लोगों को आप बेसिक चीजें तो सिखाएं ना। ये मतलब हालत है इस तबके की। दिस इज हाउ दे ऑपरेट, एंड आई जस्ट डोंट नो कि क्या ये मछली मंडी है, क्या ये दूसरों को बता रहे हैं कि आप में इतने फिरके पाए जाते हैं और हम सारे ठीक हैं। दे आर जस्ट दाकन साहब की मैं भी एक बात दाकन साहब की शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि इतनी खूबसूरत रेंज कायनात को देख के इनकार तो नहीं किया जा सकता, शुबा तो बड़ा पड़ता है कि कोई सुपर इंटेलिजेंस मौजूद है। तो लेकिन मसला ये बनता है जब इस कायनात की तरतीब को देखते हैं ना, तो मसला ये बन जाता है कि फिर इसने उसको बनाया, इसका कार वो बना, तो फिर उसको किसने बनाया सारी ना, फिर इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हालांकि यहाँ पर दलील कोई भी नहीं दी, या तो फिर दलील देता कि ऐसा मुमकिन है, बाकी फिर उसको किसी को बनाना चाहिए। कहता जी मैं इस वजह से इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उसको किसने बनाया।
تو پھر بھائی آپ پوچھ لیں نا, آپ پوچھیں کہ اگر آپ کا یہ کوشچن بنتا ہے آپ کو بتا دیا جائے گا. آپ پوری دنیا میں صرف آپ ہی تو موجود نہیں ہے اور لوگ بھی موجود ہیں, مطلب شیئر کر لیتا ہے کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں, مجھے مسئلہ یہ آ گیا. چلے جی, اچھا میں نے آپ سے کمٹ کیا تھا کہ ہم زیادہ وقت اپنے سننے والوں کو دیں گے.